Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had just started this chapter that is a dual nature of matter and radiation. Our common sense tells us that the radiation should be in the wave in nature. In fact, in the previous chapter, we had learnt about the phenomenon interference, diffraction, and polarization. In that particular phenomenon, we have to consider the radiation in the wave in nature. And I can say that phenomenon can be satisfactorily explained by the consideration that the radiation is in the wave nature. But after that, there are some phenomenon which is occur in the nature like a photoelectric effect, Crompton effect, and radiation of the black body. Though of the black body and Crompton effect is not in your content, but these are the phenomenon to understand which, if we assume that the radiation is in the wave nature, then we are not able to understood that phenomenon. We have to have some new idea to understood this phenomenon. So at that time, it was prevailing according to the classical mechanics. It was established that the radiation is wave in nature, but some phenomenon could not be explained by that wave theory of the radiation. So that is why we can say radiation is having a dual nature. Sometimes it is considered to be a wave in nature. Sometimes it should be considered as a particle in nature. So in this chapter, we are going to discuss the dual nature of radiation. In fact, wave nature of the radiation we had learned in the 10th chapter, that is wave optics. And in this chapter, we are going to discuss the particle nature of the radiation. Vice versa, matter. Our common sense and classical mechanics tells us that the matter must be in the particle in form. कोई भी matter होती है तो वो particle से बनी होती है. But uh, some in some of the phenomenon we have to consider the matter in the wave nature, and that was initially introduced by the de Broglie's. So friends, in the other part of this chapter we are going to discuss the wave nature of the matter, and that's why we can say a matter is having also a dual nature, particle nature and a wave nature. Friends, on the last lecture, we had studied about some history. We had learnt that the photoelectric effect was invented by a scientist Hertz while he was performing the experiment of a generation of electromagnetic waves. So at the time of the experiment, he found that whenever ultraviolet light is incident on the cathode, then the spark can be easily passed. Spark can be easily passed मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से इजीली पास हो सके फ्रॉम कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन आराम से ट्रांसफर हो सके. मतलब ये हुआ कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप इंसिडेंट कराते हो कैथोड के ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना चाहिए. तो फ्रेंड्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज इन्वेंटेड, इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्ट्ज, एंड उसके बाद उसके स्टूडेंट्स थे, हॉलवास था, दूसरा था लिनार्ड. तो हॉलवास ने जिंक प्लेट पे एक्सपेरिमेंट किया. उसने 3-4 एक्सपेरिमेंट किया, बट ऑन द conclusion of the all experiment is whenever a high frequency radiation is incident on the metal plate, zinc plate, then negatively charged electron is emitted from it. So that is the conclusion. उसके बाद लिनार्ड ने भी कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट किए थे. तो अब हम लिनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड उसके बेस पे कुछ हम कंक्लूजन्स डिराइव करने वाले हैं. एंड वो जो कंक्लूजन्स है उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे वेव नेचर के द्वारा. तो हमें ये पता चलेगा कि वेव नेचर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. फिर पार्टिकल नेचर के द्वारा उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे, आइंस्टाइन करेगा, तो वो चीज सेटिस्फाई हो जाएगी. तो कैसे है पूरा चीज आज हम पूरा ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. इनफैक्ट आई कैन से द होल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर. And you will be surprised by knowing that Einstein was the person who got the Nobel Prize
फॉर अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करने के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा शांति से ध्यान से आज का लेक्चर आपको बैठना है, अच्छे से सुनना है। पूरा एक एक आध 1 घंटे का पूरा सेशन है आज का। तो उसके अंदर पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपको मैं यहाँ पे आराम से मैं समझाने वाला हूँ। तो प्लीज बी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक। चलो, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये एक फिगर दिख रहा है आपको? यस सर। ओके। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो लिनार्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे किया था, उसका अरेंजमेंट क्या था? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करना क्या होता है। चलो बताओ मुझे कि उसका मीनिंग क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। Whenever a high frequency radiation is incident on the metal plate, then electron is going to be emitted. emitted Emitted. the metal. That is the main task of the photoelectric effect. Am I right, friends? यस। Okay. So friends, यहाँ पे एक लिनार्ड का देखो एक ट्यूब है, एक अपरटस यहाँ पे दिखा मतलब ड्रॉ किया हुआ है। So friends, in the लिनार्ड एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ट्यूब है, देखा ये ट्यूब, देखो इवाक्यूएटेड ग्लास ट्यूब देखा आपने ये? Yes. और वहां पे एक क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज इज अ हाईली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो वो आराम से कोई रेडिएशन को इंसिडेंट करा सकता है। तो ये क्वार्ट्ज विंडो है, तो वहां से रेडिएशन कोई सोर्स है यहाँ पे, एस इज इंडिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, सोर्स ऑफ द रेडिएशन। तो वहां से ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। एक साइड कैथोड है, कैथोड जो है वो फोटो सेंसिटिव सरफेस है, मतलब वो मेटल प्लेट है कि जहां से एमिशन करना है आपको। और वहां से अगर आपका जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, अगर आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, इफ योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज लार्जर और इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द एमिशन कैन बी पॉसिबल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमने वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन भी लास्ट टाइम डिराइव कर दिया था कि वर्क फंक्शन फाई 0, तो अगर फ्रीक्वेंसी, अगर टेक्स्ट बुक के अंदर फ्रीक्वेंसी के लिए म्यू सिंबल यूज करते हैं, मैं उसके बदले एफ यूज करूंगा, चलेगा ना फ्रेंड्स? Yes, sir. ये आपका रिलेशन है वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो अगर आपके रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है कैथोड, उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए और वो इलेक्ट्रॉन एनिड के द्वारा, एनोड के द्वारा उसमें कलेक्शन होगा वहां पे। तो दैट्स व्हाई एनोड इज आल्सो कॉल्ड एज अ कलेक्टर। इसको हम कलेक्टर भी बोल सकते हैं, चलेगा फ्रेंड्स? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे नीचे की साइड देखो एक सर्किट बनाया हुआ है और वहां पे कम्यूटेटर है। तो कम्यूटेटर का काम क्या है पता है फ्रेंड्स? कम्यूटेटर का काम ये है कि एनोड एंड कैथोड के बीच में वोल्टेज को वेरी करना। देखो ये रियोस्टेट दिख रहा है आपको, तो अगर ये रियोस्टेट का पोजीशन चेंज होगा तो ये एनोड, देखो ये कैथोड का एक टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है, एनोड का भी एक टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है। तो आफ्टर ऑल दे आर गोइंग टू कनेक्टेड विद द बिलो सर्किट। और ये आप अगर रियोस्टेट से अगर आप रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करोगे तो एनोड एंड कैथोड के बीच का वोल्टेज भी चेंज होगा। तो कम्यूटेटर दो काम करता है, एक तो एनोड एंड कैथोड के बीच का जो वोल्टेज है वो वेरी करेगा और दूसरा उसको पोलैरिटी भी चेंज करेगा। जैसे मान लो कि अभी स्विच जो है ना, यहाँ पे स्विच होती है, तो अभी मान लो कि ऐसे कनेक्शन है, मान लो कि अभी जो कनेक्शन है वो स्विच का ऐसे कनेक्शन है। इस हिसाब से कनेक्शन है। तो मतलब आप देख सकते हो कि ये जो बैटरी नीचे जो सोर्स लगाया हुआ है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड के साथ कनेक्टेड है। देखो आप देख सकते हो कि इसका जो पॉजिटिव है, देखो ये जो पॉजिटिव है ना, वो यहाँ से स्विच के द्वारा, यहाँ पे तो कुछ जा नहीं पाएगा बिकॉज वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये पॉजिटिव जो है ना वो इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये जो नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव है वो किसके साथ कनेक्ट हुआ,
कैथोड के साथ। तो अभी क्या है, अभी मैंने क्या किया है, एनोड को पॉजिटिव रखा है, एनोड को पॉजिटिव रखा है, कैथोड को नेगेटिव रखा है। तो डेफिनेटली अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए वो क्या करेंगे डेफिनेटली, बताओ मुझे। मैंने एनोड को पॉजिटिव रखा हुआ है, कैथोड को नेगेटिव रखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्विच। अभी इस हिसाब से स्विच को कनेक्ट किया हुआ है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए वो डेफिनेटली क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, मतलब टुवर्ड्स एनोड। और वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा कलेक्ट हो गए और फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो ये जो करंट जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये जो पूरा सर्किट क्लोज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरा सर्किट क्लोज करेंगे तो ये सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो करंट है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड वो मेजर करने के लिए यहाँ पे माइक्रो एमीटर भी रखा हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर रखा हुआ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट से हमें क्या पता चलेगा, तो वैसे आपको पता है कि करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड कैन आई से क्यू इज इक्वल टू एनी। So can I say photoelectric current is directly proportional to the number of electrons emitted per unit time? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हमको क्या पता चलेगा, हमको कितना इलेक्ट्रॉन्स एमिशन हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, हमको ये चीज पता चलेगी। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। चलो मुझे ये बताओ कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सोच के बताओ। इनपुट रेडिएशन है और आउटपुट करंट है। एकदम बढ़िया। इनपुट जो है ना, वो हमें जो राइट रेडिएट कर इंसिडेंट कर रहा है वो हमारा इनपुट है। एंड आउटपुट क्या है, तो बोले, आपने बोला एकदम परफेक्ट है, करंट है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन आई से दिस? यस। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आवर आउटपुट, आउटपुट ऑफ द होल एक्सपेरिमेंट। अब मैं है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसको 4 हिसाब से करने वाला हूं। हम यहाँ पे अलग अलग 4 चीज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वेराई द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हम इंटेंसिटी को वेराई करेंगे। और एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या आ रहा है, एवरी टाइम व्हाट विल चेक, एवरी टाइम वी विल गोइंग टू चेक द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हमारा जो आउटपुट है वो हम चेक करेंगे। आउटपुट हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारा आउटपुट है। तो हम क्या करेंगे कि इंसिडेंट लाइट का जो इंटेंसिटी है उसको वेराई करके एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा, आउटपुट में क्या आ रहा है, मतलब कौन एक्सपेरिमेंट में क्या चेंज हो रहा है। नंबर 1 हम इंटेंसिटी को वेराई करेंगे। नंबर 2 हम है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके पोलैरिटी भी चेंज करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को भी वेराई करेंगे। उसके पोलैरिटी कैसे चेंज हो सकता है, देखो। तो पोलैरिटी सिंपल, अभी ये जो स्विच है ना, मैंने ऊपर की साइड कनेक्ट किया हुआ है, देखो दिख रहा है आपको, ये अभी जो स्विच है वो ऊपर की साइड कनेक्ट किया हुआ है। बट अगर स्विच को हम नीचे की साइड कनेक्ट कर देंगे, अगर हम ये स्विच को अगर नीचे की साइड कनेक्ट कर देंगे, ऊपर से ये स्विच को ऊपर से हम नीचे कनेक्ट कर देंगे, तो अब देखो अब क्या होगा, देखो सोचो। तो अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, देखो। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, वो कैथोड के साथ कनेक्ट हो गया। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, वो एनोड के साथ। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है पता चला आपको, बाय जस्ट रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द स्विच, by just reversing the direction, reverting the switch, we can also get the we can also change the polarity between the anode and cathode. Is that clear friends? सर तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे ना। नहीं, वो क्या करेगा वो तो मुझे बताना है ना आपको, वो क्या करना है वो तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद पता चलेगा ना। अभी तो मैंने क्या बोला कि हम वो करेंगे। हम 4 हिसाब से एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। कौन कौन से 4 हिसाब, तो नंबर 1 हम इंटेंसिटी को वेराई करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। दूसरी बात, हम पोटेंशियल डिफरेंस को मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज करेंगे और पोलैरिटी वाइज भी चेंज करेंगे। अब वो करने के द्वारा क्या होगा वो आप मत सोचो, वो जब उसका क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, 1 बाय 1 चारों एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, तब आपको जाके पता चलेगा, तब एट दैट टाइम यू विल जस्ट एबल टू
at that time you will just think about it. Okay, and the third thing, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, अभी करने जाएंगे तब आप सोचना कि क्या होगा. ओके, तीसरी बात हम क्या करेंगे कि इनपुट जो है ना, हमारा जो सोर्स है ना, उसके फ्रीक्वेंसी को भी हम चेंज करेंगे. अब इंटेंसिटी को चेंज करना बहुत सिंपल है. इंटेंसिटी को कैसे चेंज कर सकते हो आप जो सोर्स है ना उसको नजदीक लाओ या दूर ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली जैसे सोर्स हमारा दूर होगा ये पूरे एक्सपेरिमेंट से, तो इंटेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा. जब सोर्स आपका नजदीक आएगा तो इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा. फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको सोर्स ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स. तो आप अलग अलग सोर्स लगा के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. तो हम फ्रीक्वेंसी को भी वेराई करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है. एंड नंबर 4, हम यहाँ पे 1 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 4 आता है. और दूसरी बात, हम लास्ट में हम क्या करेंगे, हम कैथोड को भी चेंज करेंगे. कैथोड में जो मटेरियल होता है, मतलब फोटो सेंसिटिव सरफेस को भी हम चेंज करेंगे कैथोड में जो मेटल है. तो बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ मेटल, ये जो कैथोड जिसमें से एमिशन करना है इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो मेटल है उसको भी चेंज करेंगे और पता करेंगे कि क्या होता है. चलो, अब हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर देखो, अपरटस क्या है, अरेंजमेंट क्या है, वो पूरा चीज आपको समझ में आया? अरेंजमेंट ये पता चला ये क्या अरेंजमेंट था? यस सर. अब 1 बाय 1 हम 4 एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. ओके, ये टारगेट आपको पता चला, ये पूरे लेक्चर का टारगेट क्या है? यस. तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इंटेंसिटी को वेरी करेंगे. इंटेंसिटी को वेराई करेंगे. चलो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो रहा है. आई एम गोइंग टू वेराई द इंटेंसिटी. ओके, चलो नंबर 1 फ्रेंड्स, we will make right now, suppose anode is kept at higher potential with respect to कैथोड. तो फिर डेफिनेटली क्या होगा फ्रेंड्स, एनोड को मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा हुआ है अभी कैथोड के रिस्पेक्ट में. तो उसका मतलब ऐसा होगा कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गए वो डेफिनेटली क्या करेंगे, मैंने एनोड को अभी पॉजिटिव पे रखा हुआ है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए वो डेफिनेटली क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे. एनोड की तरफ जाएंगे ही जाएंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेंगे ही करेंगे. फोटो इलेक्ट्रिक करंट 100% जनरेट करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे. नाउ कीपिंग पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, हम सोर्स को चेंज नहीं कर रहे हैं. सोर्स जो है ना वो उसको चेंज नहीं कर रहे हैं. और अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब रियोस्टेट का पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं. रियोस्टेट का पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं. कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, नो डाउट हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा रहेगा, अभी कांस्टेंट है, बट उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू डेफिनेटली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है. तो कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट विच इज हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इंटेंसिटी अभी हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कांस्टेंट कर दिया, हमने फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी इज वेराइड. तो अब हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं एंड हम ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे. तो हमें ये पता चला कि इंटेंसिटी वर्सेस
फोटो इलेक्ट्रिक करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। ये क्यों मिला वो तो बहुत सालों तक साइंटिस्ट लोगों भी नहीं समझा पाए थे। तो क्यों मिला वो मत सोचो, अभी तो एक्सपेरिमेंट हुआ है। वो अगर आप समझा दोगे तो आप आइंस्टाइन नहीं माने जाओगे। वो तो बहुत सालों के बाद, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वेंशन हुआ उसके बाद 15-20 सालों के बाद जाके आइंस्टाइन ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करे तो कुछ ऐसा मिलता है। मतलब क्या हुआ, चलो उसके ऊपर से कंक्लूजन आपको निकालना है। ये ग्राफ ऐसा क्यों आया वो तो हम बाद में समझेंगे, बट कंक्लूजन क्या मिला इसके ऊपर से, अभी हम जस्ट कंक्लूजन निकालने वाले हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? So conclusion is that if you increase the intensity, then number of photoelectron per unit time increases. increases linearly with the intensity. चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes. चलो हमारा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमने खत्म कर दिया कि भाई हम फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल को कांस्टेंट रखते हैं, मेटल टाइप ऑफ मेटल को भी चेंज नहीं करते हैं, मतलब बाकी के 3 पैरामीटर, बाकी के जितने भी 3 पैरामीटर है उसको हम वेराई नहीं कर रहे हैं, खाली इंटेंसिटी को वेराई कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो कंक्लूजन ये मिला कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चलो क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? ये कंक्लूजन समझ में आया? Yes. Okay, so that is what is the first conclusion of the Lennard's experiment. चलो अब हम क्या करेंगे? Potential difference. अब है ना, हम पोटेंशियल को वेराई करेंगे। चलो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमारा स्टार्ट हुआ। केस वन के अंदर एनोड इज केप्ट एट द पॉजिटिव पोटेंशियल एंड कैथोड इज केप्ट एट द नेगेटिव पोटेंशियल। तो एनोड को पॉजिटिव रखते हैं, कैथोड को नेगेटिव रखते हैं। और हम क्या करते हैं पता है? फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी कुछ चेंज नहीं करते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द पोटेंशियल। तो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी को हम वेराई नहीं कर रहे हैं, जस्ट पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज होगा। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. तो क्या होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है ना वो भी इंक्रीज होगा, बट इट कैन बी इंक्रीज ओनली अप टू सर्टेन लिमिट। पूछो क्यों? Q. बिकॉज एक बार जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो यहाँ पे एनोड पे आ जाएंगे, तो उसके बाद नए इलेक्ट्रॉन तो जितने भी पर यूनिट टाइम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट हो रहे हैं वो एक बार एनोड पे आ जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तो उसके बाद तो वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उसको जितना आना था वो तो आ गए सारे। तो आप इंटेंसिटी तो चेंज नहीं कर रहे हो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। तो पहले तो क्या होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो फटाफट इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड इलेक्ट्रॉन फटाफट अट्रैक्शन हो गए तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि करंट बढ़ेगा। बट एक बार सारे इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो एनोड पे आ जाएगा, तो उसके बाद तो करंट का इंक्रीमेंट होने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो इनिशियली जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो करंट भी इंक्रीज होगा, बट आफ्टर दैट योर करंट बिकम्स। सर बट वो तो बैटरी के ऊपर डिपेंड है ना कि वो कब तक एफिशिएंट काम कर रही है। नहीं, ये नॉर्मल मेटल की बात नहीं है। हमारे नॉर्मल मेटल में क्या होता है, नॉर्मली जो कंडक्टर होता है उसमें हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। और वहां पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है फॉर गिवन कंडक्टर। तो जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा।
बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे तो क्या है कि एनोड एंड कैथोड के बीच में तो आप देखो वैक्यूम है, एनोड एंड कैथोड के बीच में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम एमिट करेंगे कैथोड में से, उतना ही करंट जनरेट हो पाएगा। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के द्वारा ये कंफर्म्ड है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, राइट। अब सेकंड यस, में मैंने क्या किया कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट कर दिया। अब मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि वो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन फटाफट अट्रैक्ट हो गए, तो बहुत माइनर टाइम के लिए क्या होगा कि करंट थोड़ा आपको ऐसा दिखाई देगा कि बढ़ रहा है, बट थोड़ी ही टाइम में क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो करंट है उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे आप ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इट इज नॉट द मेटल, अंडरस्टूड, इट इज नॉट द फ्लो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल, इज इट अंडरस्टूड। सर बट जो भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे जाएगी वो तो अल्टीमेटली फिर बैटरी में जाके बैटरी से फिर वापस कैथोड जाने वाले तो हैं। वो करंट तो जनरेट होगा ही ना, वो आप जो बोले वो करंट बोल रहे हो, तो करंट तो जनरेट होगा ही, बट उसका वैल्यू जो है वो कब बढ़ सकता है, जब नंबर ऑफ ओके, बढ़ेगा हाँ तब बराबर। बढ़ेगा ना। हाँ सर बराबर। तो वो तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ना, करंट तो जनरेट होने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका वैल्यू बढ़ेगा नहीं। इज दैट क्लियर। ओके सर। तो वो जो कांस्टेंट करंट है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको, उसको बोलते हैं, स्टेशनरी करंट। नहीं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं उसको, वो सैचुरेट हो गया, उसका जो वैल्यू होना था वो। इज दैट क्लियर। यस सर। अब केस नंबर 2, पहले केस नंबर 1 में मैंने क्या किया था, केस नंबर 1 में मैंने क्या किया था कि एनोड को पॉजिटिव रखा था एंड कैथोड को मैंने नेगेटिव रखा था। तो इस टाइप के सिचुएशन में डेफिनेटली जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए वो डेफिनेटली एनोड पे पहुंचेंगे। अब केस नंबर 2 के अंदर मैं क्या करूंगा पता है आपको, अब केस नंबर 2 के अंदर मैं है ना एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल पे, कम्यूटेटर में स्विच को मैं रिवर्स कर दूंगा, कम्यूटेटर का जो स्विच है ना उसको मैं रिवर्ट कर दूंगा, तो एनोड हो जाएगा नेगेटिव पे, कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव पे। तो अब क्या होगा, तो अब है ना यहाँ पे देखो मैंने फ्रीक्वेंसी तो डाला हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही डाला हुआ है, ऑलरेडी आई हैड इंसिडेंट द फ्रीक्वेंसी हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो कंफर्म्ड है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो होगा ही होगा। बट अब क्या होगा कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर एनर्जेटिक एंड विच हैव अ सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम दिस अप रिपल्सिव फोर्स। अब क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्यों, बिकॉज अब क्या है एनोड पे कौन सा वोल्टेज है, नेगेटिव। और कैथोड पे क्या है भैया, पॉजिटिव है। तो कहना इसे नाउ ओनली दोज इलेक्ट्रॉन कैन रीच द एनोड which is having a sufficient energy to overcome this repulsive force. Can I say this? यस सर। Only those electron can reach to the anode which are having sufficient energy to overcome this repulsive force. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस सर। तो अब क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट। और सपोज के अभी जो मैं ये जो पोटेंशियल है कैथोड के, जो नेगेटिव पोटेंशियल है कैथोड के नेगेटिव पोटेंशियल को मैं इंक्रीज करता हूं, तो क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होना चाहिए। कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं ये नेगेटिव का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज करता हूं तो जो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो गए वही वहां पे पहुंच पाएंगे। तो मतलब जैसे जैसे मैं ये पोटेंशियल इंक्रीज करता रहूंगा तो वैसे वैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा। इंक्रीज होता रहेगा। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा ऐसा मिलेगा हमें एनोड का नेगेटिव वोल्टेज कि जहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जीरो। 0 हो जाए। तो व्हेन करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0, सो एट दैट टाइम पोटेंशियल जो है एनोड के जो नेगेटिव पोटेंशियल है
जिसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ अ कलेक्टर, एनोड को कलेक्टर भी बोल सकते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ अ कलेक्टर बाय विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0. So at that time no electron can reach the anode and hence this potential is known as a stopping potential. क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो रेडिएशन वहां पे कैथोड पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होके एनोड पे जाता है और फिर वहां पे एमिशन होगा. नहीं, देखो देखो, ये ऐसा होगा नहीं होगा वो तो हमारी सोच है. मैं जो आपको बता रहा हूँ वो जो वाकई में हो रहा है. अब वो क्यों हो रहा है उसका रीजन तो अभी तक हमको पता ही नहीं है. तो ऐसा हो रहा है कि आपकी सोच ऐसी है कि सर अगर ये नेगेटिव है एनोड पे तो फिर एक भी इलेक्ट्रॉन पहले से ही पहुंचना नहीं चाहिए ना. तो अभी स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, उसके बाद धीमे धीमे डिक्रीज होकर 0 हो रहा है करंट. ऐसा नहीं, पहले से ही नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन निकल, हाँ एमिट तो हो गए बट एनोड पे जाने ही नहीं चाहिए ना रिपल्सन के द्वारा. बट ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट तो हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. तो ये तो हो ही रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन अभी एनोड को नेगेटिव किया तो भी कुछ तो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं और उसका नेगेटिव वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं. तो पता चल रहा है कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है और कुछ वोल्टेज पे, कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज पे वो 0 हो रहा है. तो उस वोल्टेज को हमने नाम दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल. इज दैट क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन तो हम निकालेंगे वो तो बाद में. इज दैट क्लियर? ओके सर. तो ये तो अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उसके रिजल्ट क्या है वो हम उसको समझने की ट्राई कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो ऐसा पता चल रहा है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस, अगर हम यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ हमको ऐसा मिलेगा. देखो मैं बताऊँ आपको क्या, अभी हम ग्राफ क्या ड्रॉ कर रहे हैं. तो हम इंटेंसिटी को, अब कोई एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी है और ये हमारे वोल्टेज है कलेक्टर के, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर दैट इज वोल्टेज ऑफ एनोड, एनोड के वोल्टेज है और यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है. और अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना वो I1 इंटेंसिटी से किया. फ्रीक्वेंसी हम वेरी नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को वही के वही रख रहे हैं. तो पहले मैंने है ना I1 इंटेंसिटी से एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिला. बट अभी मैंने है ना कलेक्टर के नेगेटिव वोल्टेज में बढ़ा रहा हूँ. देखो ये कलेक्टर के नेगेटिव वोल्टेज जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो करंट का क्या होगा, कलेक्टर के ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव वोल्टेज है. तो कलेक्टर का नेगेटिव वोल्टेज अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होगा बोलो? डिक्रीमेंट. डिक्रीज होगा. तो अगर ग्राफ ड्रॉ किया इसका तो मुझे पता चला कि ऐसे डिक्रीज होके, ऐसे डिक्रीज होके कहीं पे वो 0 हो रहा है. तो जिस वोल्टेज पे वो 0 हो रहा है वो हमारे लिए क्या है भैया? स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल है. तो कोई मुझे बताएगा ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ने किसको स्टॉप किया? करंट को. नहीं, वो करंट एट दैट टाइम करंट बिकम 0, नो डाउट अबाउट इट. बट पर्टिकुलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल ने किसको स्टॉप किया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा मेरी मेरी बात ध्यान से सुनो. जब कलेक्टर के नेगेटिव वोल्टेज थे तो वही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंच पाएंगे जिसके पास ये रिपल्सन को अपोज करने का एनर्जी हो. बट जैसे जैसे मैं ये एनोड के कलेक्टर के नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा. क्यों? बिकॉज अभी जो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वही पहुंच पा रहा है. अब वापस से मैं नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो वापस से फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब कि अभी जो बहुत ज्यादा जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वही पहुंच पाएंगे.
तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने किसको स्टॉप किया? अब मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल ने किसको स्टॉप किया? एनर्जेटिक फ्लो ऑफ जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था उसको भी स्टॉप कर दिया। क्या ये बात सब समझ में आया आपको? यस सर। में जो कौन स्टॉप, लास्ट में कौन स्टॉप होगा? जो सबसे एनर्जेटिक होगा वो लास्ट में स्टॉप होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? तो बोले उसने क्या किया, तो उसने जो मैक्सिमम एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन था उसको भी स्टॉप किया। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट लास्ट स्टेटमेंट, energy associated with the stopping potential must be equal to the maximum kinetic energy of emitted electron, because stopping potential ने क्या स्टॉप किया? तो बोले सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा था उसको भी स्टॉप किया। तो इसी के बेस पे हम एक इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं, और इक्वेशन आपका ये होगा कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज अगर कोई क्यू चार्ज है और उसको v वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसका एनर्जी होता है qv, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा ev0, वेयर v0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाउ मच? दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके जितना होगा। तो क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया? यस सर। अब मैंने इंटेंसिटी 1 से एक्सपेरिमेंट किया था, अब मैं ना दूसरे इंटेंसिटी से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया है, फ्रीक्वेंसी ऑल द टाइम रिमेन्स द सेम, बट मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा के वापस से ये एक्सपेरिमेंट किया। तो जब मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली जो ये वाई कोऑर्डिनेट है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वो बढ़ेगा, तो वो तो बढ़ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ गया। अब वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से मैं है ना वो कलेक्टर के वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। तो कलेक्टर के नेगेटिव वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस होगा, वापस से कहीं पे वो स्टॉप होगा। बट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट दो द इंटेंसिटीज आर डिफरेंट बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। अब तीसरी बात, वापस से मैंने इंटेंसिटी बढ़ाया, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं किया, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, और वापस से मैं क्या कर रहा हूं, वापस से मैं कलेक्टर के नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा और कुछ वोल्टेज पे वो जीरो हो जाएगा। तो वापस से मुझे ऐसा पता चला कि वापस से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है वो तो वही का वही मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी चाहे आप बढ़ा लो या चाहे डिक्रीज करो, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो जो है वही का वही रहेगा। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बता रहा है हमको? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको क्या बता रहा है, वो हमको ये शो कर रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हमको शो कर रहा है। सो व्हाट डज इट मीन्स? It means that the maximum kinetic energy of emitted electron does not depend on the, should not be इंटेंसिटी। intensity, because though the intensities are different, but in all the such cases we got the same potential, stopping potential. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम हो रहा है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी सेम ही है। मतलब ये हुआ कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन, देखो ये एमिटेड इलेक्ट्रॉन हमारा आउटपुट है और आउटपुट में क्या हो रहा है वो हमको जानना है। तो हमको ये पता चला कि maximum kinetic energy of emitted electron should not be depend on the intensity of radiation, because for the different intensity also we got the same stopping potential, and same stopping potential का मतलब हुआ same maximum kinetic energy। तो इसका मतलब दूसरा हमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या डेफिनेटली होगा क्या? अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो क्या होगा? तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बढ़ेंगे, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट उसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने वाला। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया, ये कंक्लूजन? यस सर। देखो तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने दो एक्सपेरिमेंट हमने कर दिए। हमने इंटेंसिटी को वैराई किया एंड हमने पोटेंशियल को भी पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, बढ़ाया, इंटेंसिटी को भी उसके साथ में वैराई किया।
तो उसके जो रिजल्ट है वो हमको मिल गया। तो रिजल्ट ये मिला कि कोई कलेक्टर के कोई पर्टिकुलरली नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। और ये भी पता चला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको किसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, तो बोले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तो बोले वो शायद फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बिकॉज फ्रीक्वेंसी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। बट ये तो चीज कंफर्म्ड पता चला कि वो इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज इंटेंसिटी अलग अलग हम ले रहे हैं तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही का वही मिल रहा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब हम क्या करेंगे, चलो अब हम क्या अब तक हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज ही नहीं किया था, अब हम क्या करेंगे बताओ भैया, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? फ्रीक्वेंसी को चेंज अब करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो अब हम इंटेंसिटी को चेंज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे एंड विल सी व्हाट हैपेंड। तो चलो अब हम फ्रीक्वेंसी को वेराई करने वाले हैं भैया। आपके टेक्स्ट बुक में अंदर फ्रीक्वेंसी के लिए म्यू सिंबल यूज किया है, तो वो जो म्यू है ना वो वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने जो है ना वो एफ सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो हमारा जो F3 जो है ना वो F2 से ज्यादा होगा, F2 जो है वो F1 से ज्यादा होगा, और ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज विल बी हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मतलब मैं जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंसिडेंट करा रहा हूँ F1 F2 F3, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा है, ज्यादा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एमिशन तो डेफिनेटली होने वाला है। होने वाला है। तो लेट्स सी। तो अभी हम सर वापस से ग्राफ ड्रॉ करेंगे करंट वर्सेस पोटेंशियल का। वापस से करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सर बोलो। सर ये जो करंट वर्सेस वो कहाँ पे, करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑन द एनोड। हाँ पोटेंशियल, तो उसमें हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ता है, तो बट अल्टीमेटली सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बढ़ते हैं, एनर्जी नहीं बढ़ती। तो फिर जो लेफ्ट साइड जो ग्राफ है नेगेटिव वाला, वो डायरेक्ट फिर जो लोवेस्ट ग्राफ जो आपने कर्व ड्रॉ किया डायरेक्ट वहां पे नहीं चला जाना चाहिए। क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। फिर मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी नहीं मिल रही, नहीं, भले ही इलेक्ट्रॉन हम को intensity- एनर्जी नहीं मिल रही, ओके। हाँ, अगर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो जो मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन का वो चेंज नहीं होगा, वो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा ऐसा पता चल रहा है हमको। फिर बोलो। सर तो ये जो ग्राफ है वो राइट साइड हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में, हाँ हाँ। बट जो लेफ्ट साइड जो ग्राफ होना चाहिए वो सिर्फ एक ही होना चाहिए क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही। तो जो क्यों एक होगा? बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट तो डिफरेंट से ही स्टार्ट होगा ना। इंटेंसिटी अलग अलग है तो करंट तो अलग अलग ही मिलेगा ना हमको। क्यों? तो वाई कोऑर्डिनेट तो अलग अलग ही होगा ना। क्यों एक साइड एक पॉइंट से क्यों स्टार्ट होगा? इंटेंसिटी अलग अलग है आपका, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड अलग अलग होगा, तो करंट भी अलग अलग होगा। वाई कोऑर्डिनेट तो करंट है, तो करंट तो ऑब्वियसली जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका करंट ज्यादा होगा। और यहाँ पे इसलिए स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बिकॉज ये जो है ना वो सेचुरेशन करंट है। बिकॉज हमको पता है कि पॉजिटिव जब पोटेंशियल होता है, कलेक्टर का पोटेंशियल जब पॉजिटिव होता है तो करंट का वैल्यू सेचुरेट होता है, तो वो कांस्टेंट होता है। बट उसके बाद क्या होगा कि अगर हमारा कलेक्टर का पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि डिक्रीज होके जब जीरो होना था वो सारे जीरो एक ही जगह पे हुए। तो अब क्या पूछ रहे नहीं कुछ नहीं। हो? ओके। हाँ अब अब जो आप बोल रहे हो वो अब स्टार्ट होगा भाई। इंटेंसिटी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। तो मतलब कि जो करंट होगा वो क्या होगा, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। बट अभी है ना मैं फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ,
तो पहले मैंने है ना F1 से F1 फ्रीक्वेंसी से एक्सपेरिमेंट किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेजरमेंट किया, तो मुझे ये मिला। फिर मैंने है ना वही इंटेंसिटी के साथ एक्सपेरिमेंट वापस से किया, बट फ्रीक्वेंसी को मैंने इंक्रीज करके एक्सपेरिमेंट किया। तो सरप्राइजिंग रिजल्ट ये मिला कि जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया ना, तो मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अरे रे क्या हुआ ये, शिट। अरे यार, सब चला गया सर? सब चला गया, वो स्टॉप शेयरिंग हो गया, वहां पे हो गया। चलो कोई बात नहीं, वो खत्म ही हो गया था हमारा एक्सपेरिमेंट। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमारा ये था, उसका मुझे फोटोग्राफ भी देना था आपको। हम्म, कोई नहीं, दूंगा मैं सर फोटोग्राफ, वो तो रिकॉर्डिंग में से ले लेंगे ना। रिकॉर्डिंग में से फोटोग्राफ ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये अब क्या होगा कि हम ये थर्ड एक्सपेरिमेंट, हमने पहले आपको पहले दो एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया ना। तो अभी है ना, हम थर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मैंने इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया, इंटेंसिटी वही का वही है। तो आपका जो स्टार्टिंग का जो करंट होगा ना, वो तो वही का वही होगा। बट मैंने है ना फ्रीक्वेंसी को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी मैंने पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल में इंक्रीज करूंगा। तो क्या होगा कि नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करूंगा तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा, वो ऑब्वियसली एज पर द प्रीवियस थ्योरी। और मुझे कुछ जगह पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। फिर मैंने है ना वही एक्सपेरिमेंट दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके किया। तो मालूम लगा कि फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मालूम लगा कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है वो थोड़ा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो भी थोड़ा इंक्रीज होके मिल रहा है। और तीसरे फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चला कि ऑल भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले F1 फ्रीक्वेंसी से एक्सपेरिमेंट किया, फिर बाद में F2 फ्रीक्वेंसी से एक्सपेरिमेंट किया, फिर बाद में F3 फ्रीक्वेंसी से मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, देखो आप देख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस? चलो कोई मुझे बताएगा उसमें से कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका? When you are increasing the frequency, your stopping potential is also increases. What does it mean? एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ना, उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके साथ वेराई हो रहा है? फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ वेराई हो रहा है, उसको इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। नहीं है। सो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो पहले हमने किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया था? इंटेंसिटी। हमने इंटेंसिटी को वेराई करके एक्सपेरिमेंट किया था। सेकंड हमने क्या किया था? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें भी हमने इंटेंसिटी को चेंज किया था। तो पता चला था कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के साथ वेराई नहीं हो रहा है, मतलब एमिटेड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के साथ वेराई नहीं हो रहा है। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी से एक्सपेरिमेंट किया, तो पता चल गया कि भाई हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एमिटेड इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेराई हो रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रही है। सो maximum kinetic energy of emitted electron is depend on the frequency of incident radiation. So that is the conclusion of this third experiment. Is that clear, friends? अब एक बाकी बचा, चलो कौन बचा? अब एक एक्सपेरिमेंट करना बाकी बचा है, कौन बचेगा, कौन बचेगा? एक बाकी बचा। चलो अब क्या करेंगे हम, बताओ?
पोलरिटी। अब हम वो मेटल चेंज करेंगे ना कैथोड के। हाँ तो अब अभी तक हमने क्या किया था कि वो जो जिसके द्वारा हम एमिशन ले रहे हैं, जिस मेटल के द्वारा हम एमिशन अचीव कर रहे हैं, उसको मैंने कभी चेंज नहीं किया था। मतलब कैथोड का जो मेटल है उसको चेंज नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 तो खत्म हुआ। फ्रीक्वेंसी, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 3, फ्रीक्वेंसी इज वेराइड। अब हमारा फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मेटल का है। तो अब हम क्या करने वाले हैं भैया, टाइप ऑफ फोटो सेंसिटिव सरफेस, that is metal of anode, metal of cathode is changed। तो अब मैं है ना ये कैथोड अलग अलग मेटल के द्वारा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और उसके लिए मैं है ना फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, एक चीज तो कंफर्म्ड हमने देख ली कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी, फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ा रहे हो तो आपका स्टॉपिंग, देखो ये रहा थर्ड वन, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा था। बढ़ रहा है। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, आपके फ्रीक्वेंसी के साथ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बट द ग्राफ शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द एफ नॉट। पूछो क्यों? क्योंकि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। देखो, अगर आपका फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ जीरो है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आपका फ्रीक्वेंसी कम है तो एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। नहीं होगा। तो भाई अगर होगा ही नहीं तो उसका स्टॉप करने का जरूर, मतलब उसको होगा, वो एमिट ही नहीं हो रहा है तो फिर उसको स्टॉप करने की जरूरत भी नहीं होगी ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पिक्चर में आएगा ही नहीं तब तो। इज इट क्लियर? यस सर। बट ये है ना, मैंने मेटल ए के द्वारा ग्राफ ड्रॉ किया। तो पहले मैंने मेटल ए के लिए ये ग्राफ ड्रॉ किया, फिर वही चीज मैंने मेटल बी के लिए किया। तो पता चला कि भाई मेटल बी के लिए जो ग्राफ है ना वो थोड़ा चेंज होता है। उसका स्लोप तो वही रहता है, बट उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल के जो वैल्यूज है ना वो डिफरेंट मिलते हैं। तो मतलब ये पता चला कि अलग अलग मेटल के द्वारा अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर एफ नॉट सेम नहीं रहना चाहिए। एफ नॉट थोड़ी सेम रहेगा। अलग अलग मेटल के जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। अल्टीमेटली सर, बट इलेक्ट्रॉन तो सबका एक ही होता है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है पहले ये सोचो। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन आउट फ्रॉम द गिवन मेटल। तो अगर मेटल आप चेंज करोगे तो उसका वर्क फंक्शन भी चेंज होगा, तो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। कुछ मेटल ओके। के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अटेंटिवली अट्रैक्टेड कंडीशन में होते हैं आयंस के साथ, कुछ मेटल्स है तो उसमें लूजली बाउंडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम रहता है, उसका वर्क फंक्शन भी कम रहता है। जिसमें स्ट्रांगली बाउंडेड है तो उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। तो टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड होगा ही ना। इज दैट क्लियर? यस यस सर। So finally the conclusion is that if we change the metal, then it is found that the stopping potential for the given frequency is also different. तो मेटल को चेंज करने के द्वारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी चेंज होता है, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। ये चीज हमको सीखने मिला। तो हमने सर 4 बार, हाँ बोलो। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम आ रहा है ग्राफ से। कहाँ पे सेम आ रहा है? देखो, सपोज के मान लो मैंने F1 फ्रीक्वेंसी से ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैंने ऐसा मान लो कि आपका F1 फ्रीक्वेंसी है। तो देखो, अब सीधी सी बात है, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो मेटल एक के लिए जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा, वो जो फ्रीक्वेंसी पे मिलेगा, वो मेटल 2 के लिए वो दूसरे फ्रीक्वेंसी पे मिल रहा है। देखो आप, तो मेटल 1 के लिए, मेटल ए के लिए जहां पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है जिस फ्रीक्वेंसी में, तो क्या वही फ्रीक्वेंसी पे आपको मेटल 2 के लिए वही मिल रहा है क्या?
तो मेटल 2 के लिए वो फ्रीक्वेंसी पे कुछ अलग ही है। देखो मैं दूसरे हिसाब से समझाता हूँ आपको। मान लो कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कुछ F1 फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, जो दोनों से ज्यादा, दोनों के हिसाब से ज्यादा है। तो ये F1 फ्रीक्वेंसी के लिए मेटल 1 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मेटल 1, वो ये रहा आपका। मेटल 1 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये रहा, एंड मेटल 2 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वही फ्रीक्वेंसी के लिए मेटल 2 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सॉरी मेटल 2 का तो मैंने ले लिया, मेटल 1 के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वही फ्रीक्वेंसी के लिए, तो वो वही फ्रीक्वेंसी के लिए आप देख सकते हो कि मेटल 1 का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना ये रहा, यहाँ पे मिलेगा आपको। आया बात समझ में? यस सर। इज इट अंडरस्टूड नाउ? सर मतलब वैल्यू तो सेम ही आ रही है पोटेंशियल डिफरेंस की। कहाँ पे यार, क्या बोल रहे हो? हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब मैंने एक्सपेंड किया फ्रीक्वेंसी 1 से, ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी 1। तो मेटल ए जो है ना उसके लिए वेव फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब y कोऑर्डिनेट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब y कोऑर्डिनेट। तो ये y कोऑर्डिनेट मुझे यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा, देखा? तो मतलब मेटल 1 के लिए ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे मिल रहा है मेटल 1 के लिए, और वही फ्रीक्वेंसी के लिए अगर मेटल 2 की बात करते हैं तो ये मेटल 2 का जो ग्राफ है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे ये मिल रहा है। तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने वही डाली थी इंसिडेंट लाइट की, बट एक बार मैंने मेटल 1 से एक्सपेरिमेंट किया, एक बार मैंने मेटल 2 से एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या दोनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको सेम मिल रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो अभी क्लियर हुआ आपका? यस सर। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ तो वेरी हो ही रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ तो वेरी हो ही रहा है, बट अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और मेटल को चेंज करते हैं तो भी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन के जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो दो चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन कौन से दो चीज के ऊपर? फ्रीक्वेंसी और मेटल। तो आप, हाँ, एक तो आपका इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड दूसरा आपका टाइप ऑफ मटेरियल। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो फ्रेंड्स ये पूरा एक्सपेरिमेंट, हमने पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, तो हमने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, तो मैं कंक्लूजन्स बोल रहा हूं, आपको आधा सेंटेंस पूरा करना है। तो कंक्लूजन नंबर 1, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, number of photoelectrons that is photoelectric current for the given material, material को फिक्स रखा, for the given material and given frequency, frequency को भी फिक्स कर दिया, is directly proportional to intensity of radiation. That is the first conclusion. It is understood, friend? Yes sir. Second, the maximum kinetic energy, that is the stopping potential, maximum kinetic energy that is stopping potential for the given material and given frequency does not depend on the intensity of radiation. Is that clear? The third conclusion? Sorry. Yes sir. Third conclusion. Yes. Third conclusion. The maximum kinetic energy of electron, that is the stopping potential for this experiment, though it is not depend on the intensity of radiation, but it is depend on the frequency. Or we can say that if the frequency increases for the given material, if the frequency increases, then stopping potential also increases. That is third conclusion. Fourth conclusion, the maximum kinetic energy of electron is depend on the frequency of the incident material, frequency of the incident radiation, as well as the material of cathode type of material. Is that clear? Yes sir. Fifth conclusion, irrespective of intensity, चाहे intensity कितनी भी ज्यादा या कम हो, irrespective of the intensity, if the frequency is less than the threshold frequency, then emission not occur, does not takes place. Is that clear, friends?
यस सर। इज द फिफ्थ कंक्लूजन। एंड द सिक्स्थ कंक्लूजन वो यहाँ पे कहीं पे मैंने डिस्कस नहीं किया, वो पहली बार बता रहा हूँ कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है ना वो स्पॉन्टेनियस होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ स्पॉन्टेनियस थिंग आफ्टर इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन। After incident of radiation, electron gets emitted within a 10⁻⁹ second, 1 nanosecond। मतलब जैसे ही आपने रेडिएशन का इंसिडेंट किया, ऑन द सेम टाइम आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, and that within a 10⁻⁹ second, that is within a 1 nanosecond. So this event is a spontaneous. Is that clear, friends? यस सर। तो ये 5-6 कंक्लूजन्स जो है वो हमने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने डिस्कस किया। अब ये जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, वो बहुत सालों तक साइंटिस्टों के लिए वो एक टाइप का रहस्य था, उसको पता नहीं चल रहा था साइंटिस्ट लोगों को कि ये क्यों हो रहा है। पहले तो लोगों ने क्या किया कि पहले वेव ऑप्टिक्स अप्लाई किया, बिकॉज एट दैट टाइम प्रेवेलिंग थिंग वाज अ वेव ऑप्टिक्स। एट दैट टाइम ऐसा ही बिलीव था कि भाई जो रेडिएशन होता है वो वेव फॉर्म में होता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि वेव नेचर से उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, ये जो जितने भी फिनोमेनन्स है उसको एज अ वेव नेचर उसको समझाने का ट्राई किया। तो क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट मिल रहे थे एक्सपेरिमेंटली उसको समझाने में दिक्कत आई। इनफैक्ट वेव नेचर कंप्लीटली गिव अस द अपोजिट थिंग देन व्हाटएवर एक्चुअली अकर्स। तो अब मैं वो आपको ये बता रहा हूं कि वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे क्यों यहाँ पे कोलैप्स हो रहा है, वो यहाँ पे क्यों इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो हम समझेंगे। बट एक बार मुझे फिर से आप मुझे पूछना है, एक बार फिर से मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा, आधा आपको कंप्लीट करना है। नंबर 1, फॉर द गिवन मटेरियल that is for the given photosynthetic surface and given frequency, the photoelectric current is independent of intensity. Oh, sorry, dependent on intensity. directly proportional to the intensity. Is that clear? Number 1. Number 2, the maximum kinetic energy of emitted electron is dependent on frequency and material of cathode. वो थोड़ा आएगा। The maximum kinetic energy for emitted electron for given material is independent of Intensity. Number 3, the maximum kinetic energy of emitted electron is for the given material is depend on the frequency and it is increases with the frequency. Number 4, the maximum kinetic energy of emitted electron is depend on the frequency as well as Material of cathode. type of material, type of emitting material. Number 5, irrespective of intensity, if the incident frequency is less than the threshold frequency, then emission does not Occur. takes place, does not occur. And number 5, this effect is a Spontaneous. So these are the experimental result. Is it understood, everybody? Yes sir. तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes sir. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सीखेंगे कि why the wave theory collapsed to explain this phenomenon. तो मेरी बात ध्यान से सुनना। चलो, दैट इज अ वेरी, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पूरे सब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट आर द कंक्लूजन्स ऑफ द फोटो एक्सपेरिमेंट ऑफ द लिनार्स एक्सपेरिमेंट। तो वो जो कंक्लूजन है ना जो मैंने 5-6 आपको दिखाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। तो आपको एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है, उसके कंक्लूजन्स को प्रिपेयर कर दो। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, मतलब ये आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो आपको एज अ लर्न बाय हार्ट करना है, कंक्लूजन्स। नंबर 2, वेव थ्योरी क्यों कोलैप्स हो रही है, वो दूसरा आपका क्वेश्चन है आज का जो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। ओके, तो समझ लो सबसे पहली बात कि भाई अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी जो वेव का जो एनर्जी होता है ना वो शायद आपको पता होगा कि ½ k² होता है। क्या ये आपको पता है?
एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस के द्वारा ही तो वेव क्रिएट होता है, ऑसिलेशंस के द्वारा ही तो वेव क्रिएट होता है। तो वो जो एनर्जी होता है वो हाफ के स्क्वायर होता है, मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एंड इफ यू रिमेंबर इन द वेव थ्योरी योर इंटेंसिटी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। तो इसका मतलब कि ये जो आप हाँ सर, एनर्जी है वो भी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी भी आपका ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मतलब ये हुआ कि जिस लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी उसका एनर्जी भी, इन दोनों के द्वारा ऐसा कह सकते हैं कि वो दूसरे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो अगर ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट है तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ज्यादा एनर्जी वाला लाइट अगर हम उसको इंसिडेंट कराएंगे तो फिर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए। होना ज्यादा चाहिए। होना चाहिए। तो अगर ज्यादा एनर्जेटिक अगर हम रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए, बट हो क्या रहा है? नहीं हो रहा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो वेव ऑप्टिक्स तो ऐसा बता रहा है, वेव ऑप्टिक्स तो ऐसा बता रहा है कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, ये तो हो नहीं रहा है। तो मतलब ये यहाँ पे फर्स्ट कोलैप्स हुआ। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस यस सर। सर। दूसरी बात कि अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट अगर इंसिडेंट कराते हैं, उससे उल्टा सोचो, अगर हम कम इंटेंसिटी वाला लाइट इंसिडेंट कराते हैं, मतलब इंटेंसिटी कम है तो वो तो लाइट बहुत ही वीक रहेगा। तो अगर ऐसा वीक लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम एनर्जी मिलेगा। तो या तो उसका एमिशन होना ही नहीं चाहिए, अगर या फिर हो तो बहुत लॉन्ग 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 ड्यूरेशन के बाद होना चाहिए। तो अगर हम कम इंटेंसिटी वाला लाइट अगर इंसिडेंट कराते हैं तो या फिर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना ही नहीं चाहिए बिकॉज वो तो बहुत ही वीक है, या फिर बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होना चाहिए। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक्चुअल में क्या हो रहा है, whatsoever the intensity is less, but if your frequency is larger than the threshold frequency, then the emission takes place spontaneously. तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा करेक्शन हुआ कि भाई वेव थ्योरी तो ऐसा बता रही है कि अगर इंटेंसिटी कम रहेगा लाइट का तो वो डिम लाइट रहेगा, मतलब वीक रहेगा, तो उसके द्वारा एमिशन होना ही नहीं चाहिए, या फिर होगा तो बहुत देर होगा। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हो क्या रहा है कि whatsoever your intensity is small, irrespective of the intensity, if your incident frequency is larger than the threshold frequency, then the emission takes place spontaneously. How it is happening? Wave optics cannot be explained. तो ये चीज पता चला आपको? यस सर। तीसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी फ्रीक्वेंसी को एनर्जी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। According to the wave theory, there is nothing to do the frequency with the energy. एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का लेना देना ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी पता नहीं चला। चौथी बात, अगर कोई रेडिएशन वेव फॉर्म में है, तो जब वो अगर वो रेडिएशन मेरे सामने देखो, अगर कोई रेडिएशन वेव फॉर्म के अंदर है, तो अगर वो रेडिएशन कोई मेटल के ऊपर पड़ता है तो जितना भी उसका एनर्जी है, उसका जितना भी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज वो वेव है। तो जितना भी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मेटल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा और अगर वो वेव फॉर्म में है तो वो जितना भी एनर्जी है वो सारे इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एट ए टाइम कोई एक इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिलेगा? बहुत कम, मतलब कम मिलेगा, हाँ। बहुत कम मिलेगा। तो थोड़ा टाइम जाने के बाद अगर रेडिएशन कंटिन्यूअस है तो थोड़े टाइम के बाद ग्रेजुअली सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और कुछ टाइम के बाद फिर एमिट होगा। बहुत टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन अपने वर्क फंक्शन जितना एनर्जी गेन कर पाएंगे, और उसके बाद उसका क्या होगा, एमिशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस,
कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10⁹ में तो और 10 emit to हो -9 10 to -9 सेकंड में तो हो हाँ जाता सॉरी -9 है, क्वांटाइजेशन हो रहा है। तो ये मतलब जितने भी कंक्लूजन्स है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो अगर वेव ऑप्टिक्स के नजरिए से देखे, वेव ऑप्टिक्स के नजरिए से, तो पूरा अलग ही पिक्चर मिल रहा है और जो हो रहा है वो पूरा अलग है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा है, ये इफेक्ट को समझाने के लिए। तो क्या ये चीज आपको समझ में आई फ्रेंड्स? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना भैया ये सब? सर और एक जी। पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं ना हाँ बोलो। सर। वेव थियरी के हिसाब से जो सरफेस होता है वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है या तो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यहाँ पे तो एब्जॉर्ब हो रहा है, सारा एनर्जी ले रहा है। वो तो देखो, दैट इज, देखो ये जो आप बोल रहे हो ना, वो तो मेटल कैसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेटल ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो रिफ्लेक्ट ही कर दे, इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ कंप्लीटली मिरर, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है। हाँ बट ये चीज हम डेफिनेटली एक चीज ऐड कर सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स cannot explain how the number of photo electron increases with the intensity। अब इंटेंसिटी आपका ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ क्यों रहा है, वो उसमें कोई वेव ऑप्टिक्स में उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द इंक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी, हाउ दिस डज, सो दैट इज नॉट अंडरस्टूड बाय द वेव ऑप्टिक्स। ये एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मतलब जितने भी कंक्लूजन्स है उसको अगर वेव ऑप्टिक्स के नजरिए से देखे तो पूरा अलग ही होना चाहिए और हो कुछ अलग ही रहा है। मतलब यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा है। अब क्या होगा, किसने समझाया, कैसे समझाया और क्या हुआ, तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर तक आपको वेट करना पड़ेगा। बट क्या ये पूरा थ्योरी आपको समझ में आया, पूरा चीज? यस सर। तो आज हमने क्या सीखा? तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर था, मैंने पहले ही बताया था कि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वो चैप्टर का मेन पार्ट है। आई थिंक आपको ये पूरा मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और इसके बाद का जो लेक्चर है वो उससे भी आपको पता चल गया होगा कि इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए? तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। इतने क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। उसमें आपको प्रिपेयर कौन से करना है? आपको सिर्फ 16 एंड 17 ये दो क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करना है, बाकी सब एक्सपेरिमेंटल है। इज दैट क्लियर? यस सर। 16, write the characteristic of the photoelectric effect, that is the conclusions obtained in the experiment. The 16 मतलब conclusion obtained in the experiment, and 17 shows the wave theory cannot explain the fundamental characteristic of the photoelectric effect। तो ये दो क्वेश्चन आपको लर्न बाय हार्ट करने हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मैंने उसको पूरा मतलब अच्छे से समझा दिया है, आपको जस्ट आपको रीड करना है। एग्जैक्टली क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स ये आपका संडे को जो एग्जाम होगा वो चैप्टर नंबर 11 का होगा, उसमें फ्राइडे का भी आपका आएगा। हाँ मतलब अभी आपका एक एग्जाम अभी आपका चल रहा है 9th and 10th चैप्टर का। आपका आपने आई होप कि आपने पेपर लिख दिया होगा, आप उसको पेपर सेंड करो। ये दो चैप्टर मैंने आपको पहले से ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आप सीबीएसई में हो चाहे आप गुजरात बोर्ड में हो, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स 11 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे वापस से हम थर्सडे को मिलेंगे, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया, सारे रिजल्ट्स कैसे हमको, कौन से तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो हम थर्सडे को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। अमन कुछ पूछना है आपको? સર મમ્મી પપ્પાને તમને મળવા આવું છે તો આજે ફાવશે? फोन करो ना, फोन रात फोन करो। आज तो नहीं ओके फावे, ओके आज सर रात फोन करो। ओके